Yeah, okay. Now, what is basically wind? What we have been discussing, it's very simple terms. If you just see that wind is nothing, it is just the movement of air. And how this movement of air takes place? In a very simple way, it is caused by uneven heating of the earth. And if we have understood, we have learned how this atmosphere, how this land gets heated up, how the surface of sea gets heated up through the incoming insolation or radiation from the sun. So this uneven heating of the earth by sun and the earth's own rotation, that is basically what causes the movement of this air. Some areas you see they get heated up, some areas are cooler. So where the sun is all the time there, example equator, the wind is gets the air gets heated up, it starts rising. When it starts rising, there is a low pressure created, and wind from the high pressure to low pressure, it starts moving. So that's only how the movement of the wind takes place. So winds range from light breeze to natural hazards such as hurricanes, tornadoes. It does not have much substance. You cannot see it or hold it, but you can feel its force. Now, if you see something called pressure gradient, what is pressure gradient basically? Is the equator, at equator the sun warms the water and land more than it does the rest of the globe, and this warm equatorial air rises higher into the atmosphere and migrates towards the pole. Now this is a low pressure system. What I explained you, when we heat up, the air is getting heated up, it starts rising and there is a low pressure created, and same time cooler denser air moves over the earth's surface towards the equator to replace the heated air, and this becomes a high pressure system. So basically there are two systems, low pressure and high pressure system. Winds generally blow from high pressure areas to low pressure areas. Why? Because of the gradient force. Means there is a difference in the pressure system. So from high pressure the wind starts moving towards the low pressure. Now what is pressure gradient? If we have to define, is basically the fall of pressure with distance. Now if the distance between the isobars is small, the pressure gradient is said to be high and strong winds are expected. And similarly, if you see that if the distance between the consecutive isobar is large, that means the pressure gradient is said to be small and the winds of lower speed will be expected. So very simple thing we have studied from the what we call that weather map. If we see the distance between these isobars, so I can immediately make out what type of wind force I expect. Now there is another thing called Carolis force or geostrophic force. Now this is happening when a horizontal pressure gradient exists. Horizontal pressure gradient means high pressure low pressure area. A force called pressure gradient force acts on the air which moves from high to low pressure at right angles to the isobars. However, the air does not move in this direction. Now if there was nothing else, only this pressure gradient, then the wind would have moved directly, like from in a horizontal direction from high pressure to low pressure, but this does not happen. Why? Because there is something called Carolis force comes into picture. Now this Carolis force is due to the rotation of earth. And what is its effect? It basically deflects the wind. How it deflects? Now Carolis force, it is called so as it relates to the rotation of earth about its axis and causes the air to be deflected to the right of its line of motion in the northern hemisphere and to the left of its line of motion to the left in the southern hemisphere. Now that means at particular place, what will be the wind direction? If you see this, anytime if we have to see, it's not just the pressure gradient, it will be a resultant of these two forces. One is the pressure gradient, that is the difference in pressure between two places, and second thing is the Carolis force coming into act. So this Carolis force, we know it is deflecting the wind to the right and to the left in the different hemispheres. So basically the wind at any place is a resultant of these two forces. So if you have understood this, it becomes very easy that how this wind movement takes place. So Carolis force acts always at right angles to the direction in which the wind is blowing, and it is zero. Carolis force is zero or minimum at equator, and it starts increasing as the latitude increases and becoming maximum at the pole. So now the force or the magnitude of this Carolis force keeps on increasing from equator towards the poles. So winds actually blowing over any area are the resultant of what I was telling is the gradient and Carolis force. Now winds blow spirally inwards towards a depression. These things are very important. This looks very basic and looks very easy, but sometimes it becomes difficult to understand. So understanding further
what is low pressure, depression, storms and all that, it becomes very easy. Now winds blow spirally inward towards the depression, anti-clockwise in northern hemisphere and clockwise in southern hemisphere. Now इसके लिए भी एक simple, I will show you the image there, that how this thing takes place. Why? That if there is a low pressure area existing in the northern hemisphere, the winds around this low pressure will be moving in anti-clockwise direction. And same thing if there is a Coronary force जो है this is the nature, this is what the nature is. So if I tell you, it's a very simple thing, that is again, it's a natural laws that in northern hemisphere the Coriolis force is basically deflecting your wind to the right, and in the southern hemisphere to the left. And you see in the northern hemisphere, if the ship is in northern hemisphere, water की rotation देखना किस तरफ, एक तरफ होगी. You go to the other hemisphere, the water rotates when it is going down the drain pipe in a other direction. तो इसका एक बड़ा अच्छा व्हाट्सएप था इन अफ्रीका, जहाँ पे इक्वेटर के पास. दिस गाय शोइंग इट टू द टूरिस्ट्स. सो आई डोंट नो, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. और ये क्यों होता है इसके लिए तो मैं भी नहीं आंसर कर सकता कि यस, जैसे आप कह रहे हो कि अर्थ इज़ रोटेटिंग, कि बेसिकली इट शुड. बच्चे द साइज ऑफ द अर्थ, आपका जो प्लैनेट है, इट इज़ सो ह्यूज रीजन, बट इट इज़ जस्ट द ऑब्जर्वेशन कि हाँ यार, इफ़ आई स्टैंड हेयर, इफ़ आई ऑब्जर्व द विंड इज़ मूविंग इन दिस एग्जाम्पल. हमने देखा है कि यस द सीजन्स, तो इसके लिए ये क्यों होता है, इट इज़ अगेन डिफिकल्ट टू से कि वाई इट इज़ मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड इन द अदर हेमिस्फीयर इट इज़ मूविंग इन अदर डायरेक्शन. एंड इवन that way you see in equator, it will not get deflected anywhere. This Coriolis force does not act. Why? Isn't it? After all, तो equator is also spinning earth के साथ, that area is also taking that, it's moving along the axis. So it is just that observation that this force acts like this. Okay, क्यों का क्या है कि yes, yeah, मेरे मन में भी doing, because the whole body is moving in one direction, but it does take place in opposite direction. अब हम यहाँ पे इसको, इस फिगर को अगर आपने समझ लिया तो हाफ मीट्रोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी कि हाउ दिस विंड डायरेक्शन जो है एट पर्टिकुलर प्लेस, और रिजल्टेंट कैसे बनती है. नाउ दिस यू जस्ट इमेजिन, दिस इज अ हाई प्रेशर एरिया एंड द other one is a low pressure area. Now we know that the winds have a tendency to move from high pressure towards low pressure. Now that's why if around low pressure we see, now this is the pressure gradient force, this is the direction the wind is coming from, this direction G, and at this place the Coriolis force will have a tendency to deflect this wind right angle to right. This C is the Coriolis force, this is the wind moving from this direction towards G, and Coriolis force is deflecting it to the right. So basically these two forces, like the resultant will be in the direction of W. Similarly, if we see the condition of the wind here, again we see the low pressure area, I mean the high pressure area, the wind is, gradient force is moving in this direction, and Coriolis force deflecting it to the right. Again here the resultant is in this direction. Similarly, at any point if you see, this is the low, that means against the low will be high. So wind is coming from high pressure towards the low pressure in this direction, Coriolis force deflecting to right. Now if you see these arrows, the resultant force W, so the wind direction around the low pressure is in anti-clockwise direction, especially in the northern hemisphere. So that is the reason you find that anywhere when the low pressure is developing in the northern hemisphere, the wind direction will be anti-clockwise. It is moving in this direction. Whereas around the high pressure area, now this high pressure area is a huge area, maybe 100-200 miles, this high pressure area will be there. Now here again the wind direction is the gradient force, or the gradient, due to the gradient force the wind is moving from high to low. So this is the direction of the pressure gradient, again getting deflected due to Coriolis to the right. So resultant becomes this one. At this place again the gradient force from high towards low in this direction, Coriolis to the right, and resultant is W. So you see this around the high, basically the wind direction is in clockwise. The winds spirally move around clockwise, and here it is anti-clockwise. So very simple to understand that wind, the direction of the wind at any place is basically the resultant of these two forces. And very simple it is, yes, winds move from high to low, and Coriolis force, due to the nature, it is deflecting the force. Now if you see in the southern hemisphere, it becomes opposite. Southern hemisphere, if you see high pressure, low pressure,
now the winds are moving. Okay, same gradient force G. Carol is first deflecting it to the left, and then the resultant is this direction. Here again the gradient force again coming from high to low in this direction. Carol is first deflecting it to the left, and resultant this. So in southern hemisphere, if you see around the low pressure, the winds spirally move in clockwise direction. In northern hemisphere it was anti-clockwise, here it is clockwise, and same way around the high anti-clockwise. So it looks very simple. If you understand this, so it becomes very easy for many things. This will come in future, depressions, how these things are moving, to show this. So this will be the phenomena which will be used in many things in meteorology. So इसकी understanding इस level पे बहुत अच्छी तरह से clearly होनी चाहिए आप. So I hope it's clear up to here. Any doubts, anybody? Now again there is called geostropic wind scale. Here how to measure the speed of the wind from the scale. Now in the weather map they give you a scale which looks like something like this. It is given on the weather map. Now from here we can make out, now these are the, and same time on the weather map we are given isobars. Now what will be the wind speed between the isobars? This is a scale we can measure of. So it is very simple. How you can measure? You go to the particular latitude. Suppose you are moving in 30-degree latitude. So you take a divider and keep the divider between these two isobars. Suppose there are two isobars. So उनके बीच का जो distance है, I can just measure with the divider. आप divider को खोलिए, keep between those two isobars, and then you bring the divider, and जो आपका latitude है उस पे divider की एक leg को यहाँ रख दीजिए, and second leg wherever whichever line it touches. Suppose it is touching this line at 30-degree latitude. One leg of the divider was here, the other leg of the divider comes here or in between. So I can interpolate. Suppose it comes here, so I can read the wind force or the wind speed is 30 knots. सर एक बारी और अभी you know the isobars. अभी आपने isobars देखे. There are two isobars और उनके बीच का distance जो है मैं एक डिवाइडर से ले सकता हूँ. Isn't it? आपका जो नॉर्मल डिवाइडर है, मैं उनको दो आइसोबार्स के बीच में, आई ओपन माई डिवाइडर एंड कीप इट बिटवीन द टू आइसोबार्स. उसी डिवाइडर को जितना मैंने ये उसको ओपन अप किया है बिटवीन दीज टू आइसोबार्स, उसी को मैं यहाँ पे अपने लैटिट्यूड पे रख देता हूँ. सपोज माई लैटिट्यूड इज 30 डिग्री, तो मैं डिवाइडर की एक लेग यहाँ पे रखता हूँ, सेकेंड लेग कहीं ना कहीं आके टच करेगी. सपोज वो यहाँ टच करती है, या एग्जाम्पल मैं इस लाइन पे लेता हूँ, वन लेग इज टचिंग हियर, सेकेंड लेग इज टचिंग हियर. दैट मीन्स एट 30 डिग्री मेरी जो विंड स्पीड है 30 नॉट्स की आ गई. इन बिटवीन अगर आ जाता है देन आई कैन इंटरपोलेट, दैट मीन्स इट इज 25 नॉट्स फ्रॉम द आइसोबार्स. सो आइसोबार्स का जो डिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ पे बेसिकली कंपेयर करना है, उसको मैंने यहाँ पे मेजर करना है रिस्पेक्टिव आपके लैटिट्यूड. So you see if the distance is far apart. Now यहाँ से you can make out अगर the distance between the isobar is so much, काफ़ी दूर दूर है अगर आपके isobars, तो मैं एक लेग यहाँ रखता हूँ, दूसरे is very far apart, wind is hardly any 10 knots. But if the distance between the isobar is small, you can see how the wind speed is increasing. So this is basically one way of checking the wind speed from the geostropic wind scale which is given on your weather map. So आजकल तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती. हाँ बोलिए. रिकॉर्डिंग करवा देना. हाँ जी सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है. ओहो ओके ओके ऑन है सर. रिकॉर्डिंग ऑन है. ऑन है. ऑन है सर. या ऑन है सर. ऑन है. या टेक्निकल टीम हमारी बहुत एक्सपर्ट है. चलो एनीवे थैंक्स. कोई नोटिस किया, नेवर माइंड, वेरी गुड. तो कभी भी आपके मन में आएगा आई लाइक दिस थिंग्स, तो डोंट फील दैट. शिप पे भी प्लीज़ कुछ भी आपको थोड़ा सा भी लगता भी है तब क्या, चाहे गलत है चाहे ठीक है, मस्ट पॉइंट आउट. चलो ये तो था
how to measure the wind speed from the isobars using geostrophic wind scale which is given on the weather maps. अब थोड़ी सी important definitions क्या basically what is sea, what is swell, इनका क्या होता है, what is veering, backing and all that, ये भी छोटे छोटे फॉर्म में आपके रिटर्न्स में क्वेश्चन आ जाता है. राइट शॉर्ट नोट्स और डिफाइन ब्रीफली व्हाट इज सी. नाउ ये काफ़ी कंफ्यूजन भी है, मैंने देखा है यार सी एंड स्वेल पता ही नहीं लगता कि सारे सी एंड स्वेल में डिफरेंस क्या है unless somebody has taken interest and shown you on the ship कि सी और स्वेल में क्या फ़र्क है. सी बेसिकली क्या है, द नेम गिवन टू द वेव्स ऑन द सी सरफेस created by wind that is presently blowing. So where your ship is there will be a wind blowing from particular direction and wind की tendency क्या होती है, whenever there is a wind blowing it will disturb the sea surface. If there is no wind you see absolutely glassy sea, isn't it? Absolutely glassy, no even ripples. फिर थोड़ी सी हवा अगर आएगी तो ripples start forming and as the wind force starts increasing then you see small wavelets जो हैं white horses जो हैं बनने शुरू हो जाते हैं. तो वो तो आपकी है that is called the sea. That is presently जो wind वहाँ पे blow कर रही है which is disturbing the water and creating these small wavelets or white horses. वो किस direction से white horses आ रहे हैं, so I can make out कि white horses are coming or the small wavelets are coming from this direction. That is the direction of the sea. So it is a name given to waves on sea surface created by wind that is presently blowing. The height of sea disturbance in open water is directly proportional to the wind force, of course. जितनी wind strong होगी, I'll show you these images also. Beaufort scale 1, 2, 3, 4, 5. When we reach wind force 10, you see how yeah. Go ahead. सर सी हॉर्स से भी पता कर सकता है ना विंड डायरेक्शन. करेक्ट. विंड हॉर्स सी हॉर्सेज जो हैं आपके व्हाइट हॉर्सेज, नॉट सी हॉर्सेज, व्हाइट हॉर्सेज जिसे हम कहते हैं. तो व्हाइट हॉर्सेज विच आर ब्लोइंग, वो जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक चीज आपने याद रखनी है, विंड इज ऑलवेज द डायरेक्शन इट इज कमिंग फ्रॉम, isn't it? So जिस डायरेक्शन से वो व्हाइट हॉर्सेज आ रहे हैं, दैट मीन्स द ट्रू विंड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन. सो डे टाइम तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बाकी आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है. द मोमेंट यू स्टार्ट इट्स अ ऑब्जर्वेशन. हाउ गुड यू आर, ऑल ऑफ यू मस्ट बी गुड इन ऑब्जर्वेशन कि उतना मैं सी सरफेस को देख सकता हूँ कि हाँ यार स्टैंड ऑन द ब्रिज विंग and I can make out the white horses are coming from starboard bow or port bow or starboard beam or port beam, isn't it? Plus हमारे पास रिपीटर है, अगर बाई चांस नहीं भी है मैं डायरेक्शन देख सकता हूँ कि the white horses are coming from this direction. So that is basically the sea or the waves. Now what is swell? Now, swell is the name given to waves on the sea surface formed by wind that has subsequently stopped blowing or is blowing at some other place quite far away. अब swell क्या चीज़ है? Now just imagine that your sea is absolutely calm and maybe say about 200-300 miles away there is a storm or 400-500 miles there is a storm. Now storm या low pressure जो है depression जो क्या करेंगे, basically in simple terms storm is a very strong wind, isn't it? The wind starts blowing at 100 kilometers. Now if this 100 nautical mile की wind जो है sea surface पे blow करेगी, it will disturb the sea. It will create large waves. So ये जो waves create होंगी, these waves, the sea is an open area, so these waves start traveling. And ये wave जब तक इसको कोई obstruction नहीं मिलेगी या opposite direction से strong wind नहीं मिलेगी, these waves will keep on traveling. It's like you stand in a pond and आप एक उसमें पत्थर मारिए तो you see these ripples जो हैं वो travel करना शुरू करती हैं जब तक वो दूसरे end तक नहीं चली जाती. Then they die down, isn't it? So similarly ये जो waves हैं, ये बड़ी वाली जो waves बनी हैं, they keep on traveling and they keep on traveling quite a far off distance. अब क्या होता है कि by the time that you are at say maybe 200 miles away, अब 200 miles away suppose वहाँ पे wind direction is different. For example, these waves are coming from north, but now you see the place you are there the wind direction is maybe from south. इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मे बी 10 नॉट्स 20 नॉट्स की विंड है. तो वो जो 20 नॉट्स की विंड है उसने तो सी तो क्रिएट कर दिया जो हमने पहले देखा व्हाइट हॉर्सेस, बट ये जो ह्यूज वेव्स दूर से ट्रेवल होके आ रही थी या पहले उस एरिया को उन्होंने डिस्टर्ब किया था, दिस थिंग इज कॉल्ड अ स्वेल. तो ये जो बड़ी वाली वेव्स आपको दिख रही हैं जिनके ऊपर ये छोटे छोटे व्हाइट हॉर्सेस जो हैं वो आपको दिखने. हाँ सर
बोलिए। वेव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो स्वेल में कन्वर्ट, सर वेव लॉन्ग डिस्टेंस करेगा तो स्वेल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, वो जो बड़ी वाली वेव्स हो, यू कैन सी फार अवे, थोड़ा शिप से अगर दूर देखिए, एक तो शिप के नजदीक नहीं देखना, शिप के नजदीक तो शिप क्रिएट्स इट्स ओन वेव, जब शिप मूव करता है। सर मतलब बेसिकली देखा जाए तो कहीं पे हवा चल रही है और वहीं पे सी हॉर्स बन रहा है, तो वो सी है, और कहीं पे हवा नहीं चल रही है बट वहां पे सी हॉर्स दिख रहे हैं तो स्वेल हो गई। Is नो it नो नो right? नो 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 नो, सी हॉर्स तो जो बच्चे आपके जो व्हाइट हॉर्सेस हैं, व्हाइट हॉर्सेस तो लोकल विंड बनाएगी। आपका सपोज जहाँ पे शिप है वहाँ पे लोकल विंड ब्लो कर रही है, मे बी इन एरिया ऑफ से 2, 5, 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, वो जो लोकल विंड है दैट विल क्रिएट दिस व्हाइट हॉर्सेस। बट नाउ इमेजिन अभी आपकी लोकल विंड कुछ नहीं चल रही, देयर इज जीरो विंड, बट यू सी अ ह्यूज वेव्स ट्रेवलिंग, वेरी कॉमन इन द पैसिफिक, अटलांटिक। सी काम है, कोई व्हाइट हॉर्सेस नहीं दिख रहे, बट यू कैन सी दिस बिग बिग वेव्स कमिंग। कभी नोटिस किया? इनर वाटर स्वेल सर। या यस यस, हाँ ये सर। हाँ, ये जो वेव्स आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं? या तो पहले उस एरिया में देयर मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग, 50-60 नॉट्स की, उन्होंने सी को डिस्टर्ब कर दिया, अब एकदम से विंड डाई डाउन हो गई है। अब विंड तो डाई डाउन होगी, बट ये जो वेव्स क्रिएट हो गई हैं दे विल नॉट डाई डाउन सो इजीली। और सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ देयर इज अ वेरी लो प्रेशर और से स्टॉर्म फार अवे, जैसे वो लिखा 1000 माइल्स अवे और 500 माइल्स अवे, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग व्हिच इज क्रिएटिंग दिस वेव्स। तो ये वेव जो है वहाँ से ट्रैवल होके जब तक आपके पास पहुँच रही हैं, लोकल विंड तो है नहीं, इसलिए आपको ये बिग वेव्स जो है दिख रही हैं सी में। दिस इज कॉल्ड द स्वेल। अब सपोज मैं वहीं पे खड़ा हूँ और मेरे को ये वेव्स दिख रही हैं, सडनली लोकल विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग ना। लोकल विंड जैसे ब्लो करना शुरू करेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इट विल क्रिएट स्मॉल वेवलेट्स, जिसे हम व्हाइट हॉर्सेस कहते हैं। अभी ये वेव्स तो अपनी चलती रहेंगी, प्लस ये व्हाइट हॉर्सेस भी क्रिएट हो जाएंगे, तो इसको टाइम लगेगा। जैसे जैसे ये जो लोकल विंड है जो व्हाइट हॉर्स क्रिएट कर रही है, ये विंड जब स्ट्रांग होनी शुरू होगी, फिर ये उस बड़ी वेव्स को एक किस्म का स्टॉप कर देगी या ब्रेक करना शुरू कर देगी। एंड देन यू विल फाइंड ईदर देयर विल बी नो स्वेल, और किसी दूसरी डायरेक्शन में कहीं और हो। So ये नहीं है कि it is not necessary. So these waves can be coming from one direction, local wind can be blowing from other direction. तो इसको देखने के लिए आपको थोड़ा far away ship पे देखिए, तब आपको दिखेगा हाँ यार huge waves. Sometimes they can be from same direction also. Sometimes they can be from different direction. So this is what the swell is, which is basically created due to the wind which was blowing either previously or it is blowing very far away and creating these huge waves. And जो sea है, जिसे हम sea कहते हैं, that is small small white horses which are created or small wavelets created due to the local wind. I hope clear? यस सर। Yeah. तो ये चीज दोनों sea और swell में ये फर्क है। Gust and lull. Gust is in an increase in wind speed about mean value and a lull is a decrease. Suddenly आपने देखा होगा कि चलते हुए ठीक है, विंड फोर्स अभी 10-15 नॉट्स की थी, सडनली 30 नॉट्स की विंड का एक गस्ट आता है, वी से जस्ट अ गस्ट ऑफ विंड। सो दिस इज सडन इंक्रीज इन द विंड स्पीड एंड सडन डिक्रीज इन द विंड स्पीड। क्या, अभी तो हवा चल रही थी, एकदम से बिल्कुल जीरो हो गई, दैट इज कॉल्ड द लल इन द विंड्स की टर्मिनोलॉजी में। स्क्वेल इज अ प्रोलॉन्ग्ड गस्ट, सडनली गस्ट आया बट इट इज प्रोलॉन्गिंग फॉर सम टाइम। सर गस्ट एक बार बता दीजिए सर दोबारा। या गस्ट इज लाइक, जैसे आप अभी इमेजिन आप किनारा में ही खड़े हो, ओके, फॉरगेट अबाउट द सी, यू आर स्टैंडिंग एंड सडनली यू से किया जोर से, ओके, यहाँ पे तो हम कहते हैं आंधी आ गई, इजंट इट? ऑन लैंड वी यूज अ डिफरेंट वर्ड। नाउअडेज यू सी दिस, जैसे जैसे अभी जमीन समर्स आएंगी तो ये आंधी चलनी शुरू हो जाएगी। व्हाई? आंधी क्यों चलती है? अभी गर्मियों में आंधी क्यों चलती है? आप कहते हो ना डस्ट स्टॉर्म आ गया, आई थिंक कल परसों भी था, सडनली आई ऑल्सो नोटिस्ड इन आवर एरिया। So suddenly a very strong wind started blowing and dust started flying all over the place, isn't it? So ये जो sudden increase in the wind speed है, यार अभी तो सब ठीक ठाक था, and suddenly आपके दरवाजे खिड़कियां अगर आपने ध्यान नहीं दिया और बजने शुरू हो जाते, and सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर बंद कर देते, very common on land. So this sudden increase in the wind speed is called the gust. वैसे तो काम था, सब ठीक ठाक चल रहा था, ओके, थोड़ी हवा थी, बट सडनली strong wind started blowing. So at sea also this thing takes place, जिसे हम gust कहते हैं. On land we call it
अरे आंधी आ गई, चलो सब दरवाजे बंद करो, सब कुछ बंद करो. व्हाई इट इज हैपनिंग? ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द लैंड. जैसे जैसे आपकी समर आएगी, यू सी दिस लैंड स्टार्ट्स गेटिंग हीटेड अप, एंड जैसे जैसे वो हीट अप करेगी, दिस एयर कवरिंग दैट एरिया विल स्टार्ट राइजिंग. और जैसे वो राइज करेगी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा. तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो विंड फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड्स यू. एरिया डेजर्ट है या एब्सोल्युटली ड्राई एरिया है, हमारे कंट्री में तो है फुल ऑफ डस्ट, इजंट इट, वो सारी डस्ट को भी साथ ब्लो करना शुरू कर देती है. तो उसका सोल्यूशन था कि अगर चारों तरफ आपने घास लगाया, जो अच्छे सिटीज़ हैं चंडीगढ़ एंड ऑल दैट, वेयर वी हैव पुट ऑल द प्लेसेस देयर आर ग्रास इज ग्रोन. इवन फॉरेन लैंड्स में आपने देखा होगा, यू हैव वेरी लेस चांसेस टू गो अशोर. वहाँ पे डस्ट क्यों नहीं होती? कि उन्होंने कहा इस डस्ट को रोकने के लिए जस्ट ग्रो द ग्रास. कहीं पे भी सब जगह घास लगा दीजिए, मट्टी उड़ेगी. चलो, स्क्वायर इज अ प्रोलॉन्ग गस्ट. ये एक तो छोटा सा कि चल यार 10 मिनट 5 मिनट के लिए चली हवा, फिर बंद हो गई. स्क्वायर इज लाइक कि इट हैज सडनली इंक्रीज्ड एंड देन इट इज प्रोलॉन्गिंग more than a minute, and an increase in speed of at least 16 knots or 3 steps on the Beaufort scale, speed being force 3. So that is called a square. Veering and backing, I think very common thing which we know, which we talk about. The veering is a clockwise change in the direction from which the wind is blowing. अभी आप ब्रिज पे खड़े हो, you observe the wind was blowing from north, and थोड़ी देर के बाद आपने देखा maybe half an hour 1 hour, यार अभी तो विंड जो है बिल्कुल सामने से आ रही थी, नॉर्थ से आ रही थी, एंड नाउ विंड इज कम टू स्टारबोर्ड बाउ. नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम स्टारबोर्ड बाउ स्लोली. नाउ इट इज स्टार्टेड ब्लोइंग फ्रॉम स्टारबोर्ड बीम, फिर स्टारबोर्ड क्वार्टर पे चलेगी. सो दिस इज कॉल्ड, दैट मीन्स द विंड इज चेंजिंग डायरेक्शन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसे कहते हैं. द विंड इज वेयरिंग. एंड सिमिलरली इमेजिन, फॉरगेट अबाउट एनी कोर्स, यू आर हेडिंग एंड यू सी द विंड इज कमिंग फ्रॉम राइट अहेड. थोड़ी देर के बाद द विंड स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम पोर्ट बाउ. फिर 1 घंटे के बाद नेक्स्ट यू ऑब्जर्व कि अब विंड डायरेक्शन जो है पोर्ट बीम पे आ गई, फिर पोर्ट क्वार्टर पे चलेगी. सो इफ दिस इज द चेंज इन डायरेक्शन, इफ द विंड इज चेंजिंग फ्रॉम राइट हैंड टू पोर्ट बाउ, पोर्ट बीम, दैट मीन्स इट इज चेंजिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इफ द विंड इज चेंजिंग direction in the anti-clockwise direction, it is called backing, and if it is changing direction in the right hand or the clockwise direction, we call it the wind is veering. So ये एक बड़ी important चीज रहती है. तो सर ये veering और backing जो है ये आपकी उस के नाम से पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि पोजीशन चेंज हो रही है तो कोई बात नहीं. यस डेफिनेटली. कि अभी सपोज एग्जांपल आप कोर्स पे जा रहे हो and wind was coming say from say starboard bow, example, just see any course you are steering, don't worry, कोई भी कोर्स है whether you are steering. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्टिल खड़े हो, ये तब उसको वियरिंग और बैकिंग कहेंगे, कि आप मूव कर रहे हो और विंड डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब कहेंगे? Yes, no, you see, I'll just come on the board. मैं आपको बोर्ड पे ले आता हूँ. I just unshare my screen. Can you see the board? Yes, sir. Now suppose I am heading in this direction. अगर कोई भी कोर्स है, rather than steering east, north, south, कोई भी कोर्स है, my ship is heading in this direction. And मेरे को जो विंड है सपोज यहाँ से आ रही. अब आपके मन में जो डाउट था कि यस अब विंड इज यहाँ से आ रही है, थोड़ी देर के बाद मैं कोर्स ऑल्टर कर देता हूँ. अब मैं यहाँ से नाउ आई स्टार्ट हेडिंग इन दिस डायरेक्शन. दैट मींस विंड हैज नॉट चेंज. तो मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की. विंड इज स्टिल कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन. नो, दिस इज नथिंग, द विंड इज सेम. अब I was heading in like this, wind was coming from here, maybe half an hour 1 hour. फिर मैंने ऑब्जर्व किया, यार सपोज मैं इसको ले लेता हूँ. ओके, दिस इज द ट्रू डायरेक्शन, द विंड इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, एंड आफ्टर सम टाइम आई फाइंड द विंड इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट. फिर 1 घंटे के बाद मेरी वॉच खत्म हुई, मैंने ऑब्जर्व किया, नाउ द विंड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट.
तो ये विंड की डायरेक्शन कैसे चेंज हुई कि पहले तो इधर से आ रही थी, नाउ इट इज ब्लोइंग लाइक दिस, नाउ इट इज ब्लोइंग लाइक दिस, सो द विंड इज बेसिकली चेंजिंग डायरेक्शन इन दिस मोड, क्लॉकवाइज ही सर। isn't it? शिप तो मेरा चल रहा है अपनी नॉर्मल जिस भी कोर्स पे मैं जा रहा हूँ, बट आई ऑब्जर्व द विंड वाज हियर ऑन द स्टारबोर्ड बाव, तो इसीलिए ऑन द शिप व्हाट वी डू, वैसे तो मेरे पास रिपीटर लगा हुआ है यहाँ पे कि ठीक है यार ब्रिज विंग पे मेरे पास रिपीटर है, मैं उसको रिपीटर पे उसकी डायरेक्शन देख सकता हूँ, बट कॉमनली व्हाट वी डू, कैप्टन साहब भी ब्रिज पे आएंगे पूछेंगे ओके थर्ड व्हाट्स द विंड डायरेक्शन, तो यू कैन टेल हिम सर फ्रॉम स्टारबोर्ड बाव, व्हाट वाज बिफोर, sir before it was coming from north, it was right ahead, isn't it? So he is making out कि विंड कैसे चेंज हो रही है, उसके उनके माइंड में कुछ और चल रहा है, तो व्हेन दिस विंड इज वेरिंग वो आपको लो प्रेशर की इंडिकेशन भी देती है। तो सिमिलरली अगर मेरी विंड जो है, नाउ आई वाज हेडिंग लाइक दिस एंड आई वाज गेटिंग विंड फ्रॉम राइट अहेड, नदरली विंड्स आई वाज गेटिंग, एंड थोड़ी देर के बाद विंड डायरेक्शन जो है इस तरफ से आ जाती, नॉर्थ वेस्ट से आनी शुरू हो जाती, फिर विंड डायरेक्शन जो है मेरी अबीम आ जाती, isn't it? So ये वेस्टर्ली विंड्स होगी, then we are facing westerly winds, तो अब विंड डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है, बेसिकली इस डायरेक्शन में चेंज हो रही, isn't it? तो सर बेसिकली मतलब अपने को ये यही चीज इंडिकेट करता है ना कि अपने आसपास में कोई लो प्रेशर एरिया है। यस, सो ये हम आप आई डोंट वांट टू गो सडनली, स्लोली पहले आपने ये समझ लिया कि यार ये वेयरिंग एंड बैकिंग ये क्या चीज़ है, फिर हम लो प्रेशर हाई प्रेशर पे आएंगे, फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि हाँ यार ये बैकिंग और वेयरिंग जो है स्टॉर्म्स में कैसे कैसे, हाउ कैन आई प्रोडिक्ट द स्टॉर्म्स। सर वियरिंग में सर क्लॉकवाइज में ही रहेगा, डिफरेंट डायरेक्शन चेंज होगा बट क्लॉकवाइज में रहेगा। क्लॉकवाइज, यस क्लॉकवाइज। जैसे एग्जांपल आप किसी भी देख लो, आपने ट्रू डायरेक्शन निकाली कि विंड इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, विच एवर डायरेक्शन यू मे बी हेडिंग साउथ, इजंट इट? चाहे आप साउथ हेड कर रहे हो चाहे आप वेस्ट हेड कर रहे हो, यस सर। आपने ट्रू डायरेक्शन निकाली कि इट इज नॉर्थ ईस्टर्ली, इजंट इट? एक घंटे के बाद आप देखते हो यार नो, नाउ द विंड इज फ्रॉम ईस्ट, ट्रू विंड जो है दैट इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट, एंड फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हो नाउ द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ ईस्ट। Forget about which course, you may be heading into northwest, westerly course, northwest, जो जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, ट्रू डायरेक्शन तो मैं निकाल सकता हूँ देख के, कंपास के ऊपर देख सकता हूँ कि विंड कहाँ से आ रही है। सो इफ इट इज चेंजिंग डायरेक्शन इन द क्लॉकवाइज वी कॉल इट वेयरिंग, एंड इफ इट इज चेंजिंग डायरेक्शन इन द एंटी क्लॉकवाइज देन वी से इट इज बैकिंग। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो इसको इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। यहाँ तो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता है 5, 4, 5, 6 नंबर का क्वेश्चन है, फिर आप नीचे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो लाइक दिस, जैसे मैंने शो किया, मेक अ स्केच जस्ट टू इलेबोरेट द थिंग। अब 2 लाइन के तो कोई मेरे को 6 में से 6 नंबर नहीं देगा, बट मैंने नीचे एग्जाम्पल लिख दिया, सपोज लाइक दिस, थोड़ा स्केच भी बना दिया, जैसे समझाया, देन आपके मार्क्स ज़्यादा बन जाते। बट समझने के लिए just given is clockwise को wearing, anti-clockwise is backing. Now comes next phenomena is your thunderstorms. What is thunderstorms? क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये पास्ट पेपर्स में आप देखोगे कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन बना देता है जिसमें 3-4 चीज़ें दे देता है। What is thunderstorm? What is wearing? What is backing? What is gust? What is sea? What is difference between sea and swell? कुछ भी लिख सकता है। अब आपने समझ लिया, very easy question to answer. Thunderstorm is a phenomena where atmosphere is basically, 1 minute, I enlarge it. A thunderstorm is a phenomena where atmosphere is very unstable throughout for a considerable depth. Now, thunderstorms होते क्या हैं? I think nowadays it's a time even you will face these thunderstorms even on land because of the monsoons are coming. So there is a large quantity of moisture in the atmosphere and towering cumulonimbus clouds are formed. So when there is a moisture, there is a release of latent heat, condensation होगी, isn't it? When it is evaporation, clouds are forming, rising and all that, dew point से ज़्यादा ठंडा हुआ तो it will basically all these droplets will condense back, और जब ये condense होंगे तो latent heat is released,
Now this latent heat which causes the temperature to rise, thereby forcing the air to rise violently further up, aggravating the violent formation of these cumulonimbus clouds. Now आपने देखी होगी lightning and all that, that is different, that is due to the different charge formation. But the thunderstorm जो है, it is a formation, इनको energy again आपकी जो कंडेंसेशन से latent heat release होती है उससे मिलती है. तो release of latent heat creates a situation of violent convection, and this leads to separation of positive and negative charges and build up potential difference among the clouds. So when these two layers of cloud with different charges come close to each other, the charges move from higher potential to lower potential, and this is what ionizes the atmospheric gases, and the discharge path becomes visible as a flash or light. So this is how basically this lightning takes place, what we call, and this ionization also creates a shock wave which is heard as thunder. बाकी आपको पता है why lightning is seen before the thunder, that is due to the speed difference, and as a shock wave lasts longer than the flash, the thunder is heard longer than the lightning. Now this is what you see your basically global distribution. इसको भी separate topic में मैं एक लूँगा. So basically अब आपने देख लिया how these winds move. So ये आपका एक global distribution है. अगर हमारे पास if there was only sea, if there was no land mass, the earth was consisting of only oceans, तब तो ये सिस्टम बिल्कुल चेंज नहीं होना था, एंड आपकी विंड जिस डायरेक्शन में दिखा रहे वैसे ही ब्लो करनी थी. Now if you see this is your equator, what we call doldrums or ITCZ, from 0 to 5, and then again up to 30 degree north, from 5 to 30 degree you have this trade wind zones. So मैं इसको आपको बताऊंगा how these trade winds form. So basically this is called northeasterly trade winds in the northern hemisphere, and their direction is normally from northeast, and this again 30 to 40 degree is a basically called host latitudes or variables. So यहाँ पे weather थोड़ा variable रहता है, and 40 to 63 again it's a strong westerlies. So these winds basically blow very strongly from the westerly direction, and again फिर थोड़े से variable area है, and then above the 65 to 90 you have polar easterlies where the navigation is very less ships go, so we don't study much, but here the direction is polar easterly. And same thing in the southern hemisphere, it is opposite. 5 to 30 degree you have southeasterly trades. यहाँ पे trade winds की direction northeasterly है, यहाँ पे southeasterly है, and same here westerlies and polar easterlies, again they blow like this. So this is how basically your global distribution, but it changes due to the land masses. जहाँ बीच में land mass आ जाएगा वो इस direction को change कर देता है. So this is just for a very broad outlook, but मैं इसको थोड़ा सा और one day we will take all these different winds. Now comes the Baye-Ballett's law. Now Baye-Ballett's formulated a law identifying the relationship between wind and pressure distribution. यार ये जो हवा की डायरेक्शन है और ये लो प्रेशर हाई प्रेशर है, इसमें क्या रिलेशन है. द लॉ स्टेट्स इफ एन ऑब्जर्वर हैज हिज बैक टू द विंड, चलो ये कंफ्यूजिंग है, बैक वाला छोड़िए. इफ यू फेस द ट्रू विंड एंड द लो प्रेशर एरिया विल बी on your right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. So this is what he devised. Baye-Ballett was a good scientist, so he found that in case in the northern hemisphere, so now that's why important, if you face the direction of the wind, true direction of the wind, so then the low pressure area will be on right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. इसलिए आपकी ये वेयरिंग एंड बैकिंग जो है that further helps you. However, this law, इसकी भी कुछ restrictions हैं, कुछ conditions हैं. Cannot be applied near the equator. Why? Because the Coriolis force there is negligible and the winds blow directly from high pressure to low pressure across the isobars. अभी हमने पहले पढ़ा था why कि जो wind है वो एक resultant force है of the pressure gradient and Coriolis force. Now इनमें से एक भी अगर vector 0 हो गया, एक भी gradient कम हो गया, then wind direction will be different. So that's why it says the Baye-Ballett's law cannot be applied near the equator because of no Coriolis force. And this law should not be applied in the vicinity of land, as the wind may not be free from unobstructed wind and may be wind deflected by the land.
तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है आपके मेट के रिटर्न एग्जाम्स में, विंड ट्राइंगल के साथ, दैट व्हाट इज बाय बैलेट्स लॉ एंड वेयर और व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हेन अप्लाइंग और यूजिंग बाय बैलेट्स लॉ। तो ये आपका वेरी राइट आंसर आप लिख सकते हो। यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज बाय बैलेट्स लॉ एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस वेयर वी कैनॉट अप्लाई बाय बैलेट्स लॉ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इजीली यू कैन स्कोर। 8 में से एटलीस्ट 6 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं। बाय बैलेट्स लॉ क्या है और क्वेश्चंस यूजिंग बाय बैलेट्स लॉ। अब आपका आ गया ब्यूफोर्ड स्केल, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं एट सी। या इसकी भी मेरे को नॉलेज होनी चाहिए कि ब्यूफोर्ड स्केल है क्या चीज़ एंड हाउ दिस वेरियस फोर्सेस ऑफ विंड, वेरियस विंड फोर्स जो है वो कैसे प्रेडिक्ट की जा सकती है। सो इट इज़ अगेन अ कंपैरिजन that you cannot make out. Of course, either if you have an instrument to measure the speed, then you can measure, okay bhai, if this is the wind speed 10 knots 20 knots, then it is okay. Otherwise, by looking at the sea surface, I can also make out wind which Beaufort force the sea is, or presently I am saying, now this is you say force 0. Now this is what I am saying, absolutely calm sea, no wind. यहाँ से भी आज का टॉपिक बच्चे हमारा विंड का था, तो वी विल कंटिन्यू विद दिस विंड। लास्ट वेयर वी लेफ्ट वाज योर ब्यूफोर्ड स्केल। हम देख रहे थे कि वेरियस टाइप्स की विंड, तो हमने समझ लिया क्या चीज़ है, कैसे उसको देखना है। अब ये था यार कंपैरिजन, जब मैंने ब्लॉक बुक लिखनी है तो हाउ डू आई कम टू नो कि ये विंड फोर्स 1 है 2 है 3 है। उस चीज़ के लिए दिस ब्यूफोर्ड स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडमिरल ब्यूफोर्ट इन 1808। तो उसने भी जो ये सिस्टम बनाया उसी के बेस पे है। नाउ बाय लुकिंग एट द सी, सो वी कम टू नो इज द विंड फोर्स। भी आपकी बुक्स में मिल जाएगी, आपको मैग्नस हैंडबुक या दूसरी वाली बुक्स में भी, तो आप उससे कंपेयर कर सकते। नाउ व्हेन आई लुक एट द सी, अब मैंने देखा यार सी एब्सोल्युटली काम, ग्लासी, नो रिपल्स, नथिंग, दैट मीन्स नो विंड, दिस इज कॉल्ड विंड फोर्स 0। आ जाती है कि उसके बाद थोड़ी थोड़ी विंड शुरू होनी शुरू हो जाएगी। इफ देयर इज अ स्लाइट विंड, नाउ यू सी स्लाइट रिपल्स दिख रहे हैं। नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, इफ यू सी दिस टाइप ऑफ सी सरफेस, तो आई कैन इमीडिएटली मेक आउट कि यार स्लाइट रिपल्स आर देयर, दैट मीन्स इट इज विंड फोर्स 1। तो हम इसे लाइट एयर भी लिख देते हैं, वेरी कॉमन, आपने लिखा होगा लॉग बुक में लाइट एयर, स्लाइट सी रोसवेल। तो इसमें विंड स्पीड जो है 1 to 3 knot, हार्डली एनी विंड, रिपल्स विद अपीयरेंस ऑफ स्केल्स आर फॉर्म्ड बट विदाउट फोम क्रस्ट। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी सरफेस, रिपल्स विद अपीयरेंस ऑफ स्केल्स बट विदाउट एनी फोम क्रस्ट, मीन्स एनी वाइट हॉर्सेस नहीं दिखेंगे, ओनली थोड़ी थोड़ी रिपल दिखती है। दिस इज फोर्स 1। अब देखिए नाउ विंड थोड़ी ज़्यादा हुई तो अब थोड़े से ज़्यादा रिपल्स बनने शुरू हो गए, स्मॉल स्मॉल वेवलेट्स बननी शुरू हो गई। ये आपकी आ गई, इसे हम कहते हैं लाइट ब्रीज या फोर्स 2। अब इसके सी डिस्क्रिप्शन क्या है, स्मॉल वेवलेट्स स्टिल शॉर्ट बट मोर प्रोनाउंस्ड, क्रस्ट हैव अ ग्लासी अपीयरेंस एंड डू नॉट ब्रेक। आपको थोड़ी थोड़ी सी है और जिसे कहते हैं रिपल्स बड़ी होती हुई दिखी, सो फोर्स 2 आ गई है। इसमें विंड स्पीड जो है 4 to 6 knots। तो ये उन्होंने सब मेजर करके लिखा हुआ है कि फोर्स 2 ऐसा सी सरफेस होगा, इस टाइम में विंड फोर्स कितनी होगी, 4 to 6 knots होगी। कम से कम 4 knots हो सकती है, ज़्यादा ज़्यादा 6 knots, एवरेज भी टेक 5 knots। तो उन्होंने एनीमोमीटर लगाया, जो भी जिस भी इंस्ट्रूमेंट से कि भी इतना सी सरफेस ऐसा दिखेगा तो कितनी विंड फोर्स पे, कितनी विंड स्पीड पे सी सरफेस ऐसा दिखेगा। विंड फोर्स 3 वेरी कॉमन कि विंड स्पीड इज बिकम नाउ 7 to 10 knots, दैट मीन्स अबाउट 8 knots या 8 to 9 knots की एवरेज स्पीड। यहाँ मीन भी लिख देते हैं, ब्यूफोर्ड स्केल में मीन स्पीड भी दी होती है, ऐसे ही लिखा होता है मीन नॉट्स, 9 knots की स्पीड है। 9 knot की अगर विंड चलेगी तो सी सरफेस जो आपको ऐसा दिखेगा। तो मेरे को लॉग बुक में, मेरे को आफ्टर सम टाइम जब आप एक्सपीरियंस करोगे, देखना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे, फिर बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है यार, विंड फोर्स 3, ये थोड़ी थोड़ी सी वेव्स बनती हुई दिख रही है मेरे को, सी डिस्टर्ब्ड होता हुआ दिख रहा है, लार्ज वेवलेट्स, क्रस्ट बिगिन टू ब्रेक, फॉर्म ऑफ ग्लासी अपीयरेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ स्कैटर्ड वाइट हॉर्सेस, कहीं एक आधा वाइट हॉर्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा दूर। दिस इज विंड फोर्स 3। अब थोड़ी सी और विंड बढ़ेगी, फिर आप देखोगे इस वाइट हॉर्सेस जो है ज़्यादा दिखने शुरू हो गए, बस विंड सी को अब डिस्टर्ब कर रही है। दीज आर द वाइट हॉर्सेस, छोटे छोटे जो वेव जैसे बनते हैं, ये फोम जैसी बनती है, इसे कहते हैं। तो शिप से दूर देखना है आप। तो यहाँ पे विंड स्पीड अभी
13 नॉट्स की होगी, 13 नॉट की विंड चलेगी तो सी सरफेस को वो ऐसा बना देगी। तो दिस इज कॉल्ड विंड फोर्स 4। सिमिलरली विंड फोर्स 5, अब ये जो वेवलेट्स हैं थोड़े और बड़े होने शुरू हो गए, मॉडरेट वेव्स कहते हैं इसे, मोर प्रोनाउंस्ड लॉन्ग फॉर्म, व्हाइट हॉर्सेस आर एवरीवेयर। आपको व्हाइट हॉर्सेस अब ज़्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इस विंड को एक्सपीरियंस करोगे, इफ यू हैव द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, तो यू विल सी दिस अबाउट 19 to 20 नॉट्स की विंड दिखेगी। 20 नॉट्स की विंड हुई तो आपका सी सरफेस ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। छोटे शिप्स होते हैं उनमें स्प्रे भी आना शुरू हो जाएगा। यू आर सेलिंग ऑन बिगर शिप्स, हाई फ्री बोर्ड है तो कम हो, बट नॉर्मली पॉसिबिलिटी ऑफ सम स्प्रे। क्यों? विंड स्पीड ज़्यादा है, शिप इज़ ऑल्सो मूविंग, तो ये वेव्स आके हिट करेंगी तो देयर चांसेस ऑफ सम स्प्रे। सो व्हेन द स्प्रे इज कमिंग, तो लुकिंग एट द सी सरफेस यू कैन कम टू नो, अब मेरे को लॉग बुक में लिखना भी ठीक है, इट इज़ विंड फोर्स 5। डायरेक्शन, अब आप देखिए यू कैन इजीली मेक आउट कि यार ये जो व्हाइट हॉर्सेस है किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। नॉर्मली सामने इस डायरेक्शन से ही आ रहे हैं, इजंट इट? सो आप अपने कंपास रिपीटर पे जो आपका ब्रिज विंग पे है या सेंटर वाला रिपीटर है ब्रिज के अंदर जो लगा होता है व्हील हाउस में, वहाँ से भी देख सकते हैं कि यार ये कौन सी डायरेक्शन है, इजंट इट? सो यू डोंट हैव टू सी, आपको ये ट्रू विंड डायरेक्शन दिखेगी। दीज थिंग्स दे गिव यू ट्रू विंड डायरेक्शन। विंड जो है हमेशा इधर से आ रही है तभी वो सी को इधर पाइल अप कर रही है। अब देखिए विंड फोर्स 6, अब बड़ी वेव्स बननी शुरू हो गई। ये आपकी लोकल विंड जो है वो बना रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सी हाइट की मीन विंड स्पीड जो है 20 नॉट्स, हम सीमेन लैंग्वेज में। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, ऐसा कैसा हो गया यार? 2 मिनट में कैमरा बंद करके देखता हूँ, मे बी सम टाइम बैंडविड्थ प्रॉब्लम। नाउ सर अब आ रही है, पहले एकदम से सर एकदम से कट हो गई थी बिल्कुल। या कई बार प्रॉब्लम आती है बच्चे, दिस इज कॉल्ड ड्यू टू द बैंडविड्थ ऑफ द नेट। सो अगर कैमरा ऑन है तो फर्क पड़ता है, सम टाइम स्विच ऑफ द कैमरा देन वॉइस जो है अब क्लियर है, आई होप। यस सर, क्लियर आ रही है। जी सर, जी सर। Yeah, okay. So this is again your wind force 6. Now if the sea surface starts looking like this, you can imagine कि wind force जो है और wind speed will be about 24 knots and we call it a force 6 as per the Beaufort scale. तो ये भी आप देखने से कंपेयर करने से there is chances of spray, white horses काफ़ी दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा बनने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट और बड़ी होनी शुरू हुई, नाउ वेव्स जो हैं बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। सी हीप्स अप एंड वाइट फॉर्म जो है फॉर्म ब्रेकिंग वेव ब्लोन इनटू स्ट्रीक्स। अब जो ये वाइट हॉर्सेज जो थे, अभी विंड स्पीड 30 नॉट्स की हुई, सो यू विल सी दिस दे स्टार्ट ब्लोइंग अप। आपकी जो हवा में ये सब स्प्रे आना शुरू हो जाएगा along the direction of the wind. So wind direction से you will see the streaks of white foam blowing. White spray जो आपको sea surface पे blow होता हुआ दिखेगा। Of course definitely there will be a lot of spray coming on the ship. Wind speed अभी 30 knots की होगी, आपकी speed भी इफेक्ट हो सकती है। So I'm just switching on the camera, see if the आवाज़ में फ़र्क पड़ता है तो। Okay, so now ये जो sea की surface है, this is giving me an indication. Now it is almost near gale. Wind force 7, wind speed 30 knots. भी बड़ी बननी शुरू हो जाएंगी, रोलिंग पिचिंग भी शुरू हो जाएगी, स्प्रे भी आना शुरू हो जाएगा। रोलिंग पिचिंग डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। 90 डिग्री आएंगे तो रोल करेगा, उस पे आ जाएगी, फिर शिप स्टिल कंफर्टेबल हो जाता है। इफ द वेव्स आर ऑन द बाउ बट राइट अहेड होगा, फिर वो जहाज को पिचिंग कराएंगे ज़्यादा। सो नाउ यू नो दैट दिस इज विंड फोर्स 7। अब देखिए सी का जो है टोटली डिस्टर्ब हो गया। सी वाइट हॉर्स तो हैं ही हैं, एंड instead of white horse you will see a sort of white foam blowing all over the sea. because wind speed ज़्यादा है, वो आपके जितनी ये foam जो आपके white horses बन रहे हैं, आपकी thick foam जो है foam type spray जो आपको दिखना शुरू होएगा, it is blowing along the direction of the wind. streaks जैसे दिखनी शुरू हो जाएंगी, and of course spray भी हो सकता है। now even sometime you start shipping seas कि wave जो है जहाज, छोटे जहाज के ऊपर भी आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड शिपिंग सीज। व्हाट इज शिपिंग सीज? कि पूरी की पूरी वेव जो है इट इज कमिंग ऑन योर मेन डेक। आगे बाउज में फोक्सल पे पूरा पानी जो है आना शुरू हो जाएगा। सो इसके लिए प्रिकॉशंस, सो बिफोर द वेदर गोज बैड, अब दिस इज कॉल्ड अ गेल फोर्स। नाउ इफ यू रिसीव अ वेदर रिपोर्ट सेइंग देयर इज अ गेल फोर्स प्रिवेलिंग, देन हम व्हाट डू? वी विल टेक स्टार्ट प्रिकॉशंस कि भाई पानी आना, स्प्रे भी आएगा, हो सकता है sometimes the wave also breaks on the deck. so सारी water tightness, water tight doors, forepeak store की entry, ventilators, vent flaps सब आप बंद करना शुरू कर देते। so these are the basically precautions
कि बिफोर एनी डैमेज और एनी वाटर एंटर्स एनी। अब ये आपका स्ट्रॉन्ग गेल आ गया। नाउ यू सी हाउ द सी इज डिस्टर्ब्ड एज कंपेयर टू विंड फोर्स 2 and 3। सी सरफेस एकदम लेवल दिख रहा था, अब ये लाइक अ माउंटेन दिख रहा है, स्मॉल स्मॉल हिल्स बनती हुई दिख रही है। एंड यू सी हाउ द वेव्स, ये देखो पूरा का पूरा जो है वेव के विंड के साथ ये स्प्रे जो है पूरे सी सरफेस पे स्प्रे उड़ता हुआ दिखेगा। एंड नाउ द वेव की हाइट भी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। द वेव हाइट इज अगेन maybe 2 meter 3 meter। so high waves, dense streaks of foam along the direction of wind, crusts of wave begin to topple। ये wave बनेगी एंड वो टॉपल होती हुई दिखेगी। टम्बल एंड रोल ओवर स्प्रे में इफेक्ट द विजिबिलिटी। अब आपकी विजिबिलिटी भी खराब होनी शुरू हो जाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ द स्प्रे इज ब्लोइंग इन द एयर। so wind force 10, very high waves, long overhanging crust, resulting foam in great patches is blown in dense white streaks along the direction of wind। On the whole, surface of sea takes a white appearance and tumbling of the sea becomes heavy and shock-like, visibility affected। So, wind force 10 means now you are in a storm। ये जो है आपको एक white appearance देनी शुरू कर देगा। Now, definitely ships को ये rolling pitching भी ज़्यादा ही कराएगा। Ship will get again Why? Because the wave height जो है वो increase होगी, 4 to 5 meter wave height हो सकती है। ये जो sea है अब इसको die down होते हुए भी टाइम लगेगा। अब ये जो waves create होगी हैं, अभी चाहे हवा बंद हो जाए, हवा कम हो जाए मे बी 1-2 दिन के बाद, बट ये जो waves हैं इस एरिया में that becomes a swell। क्या हवा तो बंद हो गई, मे बी 1 or 2 days there is no wind, बट ये जो waves generate हुई हैं अब हम उसे swell करना शुरू कर देते। wind force 11, now you see this terrible condition। so in conditions में of course that's why अब हम जो meteorology पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं? we don't want to see this type, we don't want to land up into this type of sea, isn't it? हमारी meteorology पढ़ने का यही main purpose है कि यार wind force 10 11 है, it is terrific। छोटे ships तो इसमें डूब भी सकते हैं। तो idea is to stay away। how to stay away? weather reports। इसलिए weather reports जो है they become important। now if you don't bother फिर we'll end up into this and suddenly we'll say ये क्या हो गया? suddenly तो weather आएगा ही नहीं। so this thing is taking place। अभी जैसे आपने देखा इंडियन कोस्ट पे भी ताउते ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग साइक्लोन जो आ रहा है, आया और चला गया। so it has caused lot of destruction। इसके लिए all these warning जो है meteorologist आपको पहले से बताना शुरू कर सकते हैं, इस एरिया में storm is forming। now you know कि जब storm आएगा तो this is the sea condition। इसमें कुछ भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकती है, पानी कहीं पे भी जा सकता है। तो इसलिए दिस इज कोर्स आई डोंट विश एनी ऑफ यू एनी ऑफ अस शुड फेस दिस, बट वी शुड स्टे अवे। दिस इज विंड फोर्स 12। ठीक है, देखा। नाउ यू सी एब्सोल्युटली अ माउंटेन ऑफ वेव्स। आपका ये पूरा जहाज जो है, इवन द वेव कैन कम on top of you and go from the other side, एक साइड से दूसरी साइड। it can damage lot of deck fittings। wave has got a lot of tremendous force। see the wave height कितनी, completely white, driving spray, visibility very seriously affected। visibility भी नहीं आ रही, ship की speed इस ये आगे से कितनी resistance मिलेगी आप, this will create lot of resistance, wind will create lot of resistance। this is तो 60 knots की wind, almost about say 100-120 kilometers। so yesterday I was seeing the news, 80 किलोमीटर की स्पीड से that coast पे that ताउते hit, wind speed they say it was 180 kilometers। imagine सी की कंडीशन क्या हो, स्मॉल बोट्स तो गई पानी। चलो, ये तो थी आपकी विंड एंड वेरियस फोर्सेस। नाउ यू नो लॉगबुक लिखने के लिए, एंड इट गिव्स यू द ब्यूफोर्ड स्केल, गिव्स यू एन आइडिया। आई होप यू आर सेफ सर। हाँ जी बोलिए सर, इधर तो बहुत बुरा हाल है तूफान की वजह से। यस आप यस। सेफ हो? कहाँ पे हो आप? वेयर आर यू? सर चंडीगढ़ में सर। हाँ, चंडीगढ़ में तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो दे आर प्रोटेक्टेड। चंडीगढ़ दे आर प्रोटेक्टेड का उस स्टॉर्म का इफेक्ट सर शुरू हो गया ना सर, अभी हुआ है, घंटे पहले हवाएं चलने लग गई काफी तेज। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इट इज एक्सपेक्टेड। सो दिस इज व्हाट, तो हम मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं, सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि इट इज दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। नॉर्मली व्हेन द साइक्लोन्स दे हिट द कोस्ट, ठीक है, हम भी पढ़ेंगे, आपको भी टीआरएस हम पढ़ेंगे। सर वो बार्ज से रेस्क्यू हो गए लोग सर मुंबई में, बार्ज से पूरे नहीं, 93 yesterday I was saying, जैसे 93 were missing। अभी होता है क्या है, probably what I have seen 273 थे ना सर। या उसमें से I think 180 they recovered and 93 yesterday की रिपोर्ट थी। उसके बाद मैंने टीवी देखा नहीं, रात को ही टाइम मिलता है 10-15 मिनट टीवी देखने का, तो only keen only switch on to the weather side। अब हमारा कोई चैनल भी नहीं है, बट
बीच में न्यूज़ रिपोर्टर अपना मिर्च मसाला लगा के भी बताते रहते हैं। चलो, दिस इज जस्ट टू इट्स अ जनरल नॉलेज। वेदर को पढ़ना, नेचर को देखना, क्यूरियोसिटी नेचर की क्या है। बट अभी होता है क्या, अंडर वाटर वेव जो आता है वो भी तो विंड से आता है ना सर, अंडर वाटर। नो, अंडर वाटर में नहीं है, दिस इज ऑफ कोर्स फॉर्मेशन। बट जो आप बार्ज का कह रहे हो उनमें क्या होता है कि पीपल आउट फियर दे स्टार्ट जंपिंग। क्या नहीं सर, नहीं बोल रहा सर, कभी कभी सी में भी सर अंडर वाटर आता है, कभी कुछ दिखाई नहीं देता है, खाली विंड से सर अंडर वाटर हिलने लगता है। अरे छोड़ो ना, तुमने कौन सी डाइव मारनी है। दैट इज तुझे क्या, शांति से बैठो ना। दैट इज बेसिकली सुनामी जो कहते हो, कि आपके अंडर वाटर जो हमारा बॉटम है, बॉटम ऑफ द सी जो है, उसके अंदर भी अगर थोड़ा सा क्रैक्स या अर्थक्वेक टाइप आते हैं, और जस्ट इमेजिन एट द बॉटम ऑफ द सी, वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ का जो बॉटम है, उसमें अगर थोड़ी सी हलचल होगी, जैसे ऊपर देखिए अर्थक्वेक आता है तो कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब नीचे आ जाती है। क्योंकि आता है उसी टाइम आता है सर अंडर वाटर। यस, वो तो सर छोटे छोटे साइक्लोन फॉर्म होते ही रहते हैं ना अंडर वाटर। यस, बड़े वाला फॉर्म होगा तो नेचुरली पानी का वाटर मेंटेन्स द लेवल, तो पानी तो डिस्टर्ब होगा ही। वो जब डिस्टर्ब होगा, दिस वेव फॉर्म्स, सुनामी की जो वेव है, दैट वेव फॉर्म्स एंड देन दिस वेव ट्रेवल्स इन सच अ वे। इट्स सिंपल, नीचे जो उसका बेस है वही ऊपर नीचे हुआ है। अर्थक्वेक से क्या होता है, बेसिकली जो आपका बॉटम है या ऊपर जाता है या नीचे जाता है, नेचुरली वो पानी को भी उसी तरह से डिस्टर्ब करेगा। दिस ह्यूज वेव जो है, इट कम्स एंड पूरे के पूरे सिटी टाउन को पूरा डुबा देगी। ये आप कल देख रहे होंगे, बॉम्बे की भी उन्होंने दिखाई है, गेटवे ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट। सो इट इज़ वेरी कॉमन। अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो हमने तो इनफ मानसून देखी। आई वाज बॉम्बे पायलट 4 years। तो इस मानसून में इमेजिन छोटी बोट में जाके शिप को बोर्ड भी करना है, उतरना भी है, तो लोग तो सब डर जाते हैं, किनारा वाले बैठे, अरे बहुत बड़ी वेव है। सर उड़ीसा में सर कहाँ डरते हैं सर, फिशिंग बोट वाले फिर भी चले जाते हैं। उड़ीसा में यस इट इज बिकॉज़ यू पीपल आर फेसिंग। बॉम्बे पोर्ट में तो सर वो इनर एंकरेज से आउटर तक तो ड्रिफ्ट हुआ है सर पूरी रात, फिर डूबा है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू लर्न। सो ये आपको एक लर्निंग चीज़ के लिए है, इसीलिए कि जो नेचर है उसकी फिरोसिटी कैसे हो सकती है, कैसे हमने उससे बचना है, कैसे हमने उससे दूर रहना है, isn't it? So यही आपकी, इसीलिए आप ये चीज़ पढ़ रहे हो, यही चीज़ आप देख रहे हो कि अच्छा यार विंड फोर्स क्या है, सी क्या है, ये क्या कर सकता है। सो हाउ टू अवॉइड, स्लोली जैसे जैसे हम और पढ़ते जाएंगे, देन नाउ यू नो हाउ टू रीड द वेदर रिपोर्ट, नाउ यू नो द इफेक्ट ऑफ वेदर रिपोर्ट। न्यूज़ सुनने का यही पर्पस होता है कि हाँ यार, now this storm has done exceptionally something different. Normally when they hit the coast, so they die down, energy उनकी dissipate हो जाती है, but this is still having energy, so it is traveling these waves, और जो इसकी wind speed है still traveling up north, land के अंदर कितनी दूर तक ये travel कर रहा है। So nature is nature, ये रूल रेगुलेशन से थोड़ा ना फॉलो करेगी। आपने तो जितना मर्जी सीख लिया, अच्छा भी नहीं, अब ये डाई डाउन हो जाएगा। अब देखो चेंज हो गया, समटाइम वी सी, अब सडनली नाउअडेज यू सी देयर इज लॉट ऑफ हीट, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पहले नहीं पड़ती थी। वेदर्स आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ द मैन। हम लोग जो सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं नेचर के साथ, दिस इज द रिजल्ट। चलो इसको बच्चे खत्म कर लेते हैं। आज विंड ट्रायंगल भी हमने करना है। विंड रोज, ये भी आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज विंड रोज, डिस्क्राइब द विंड रोज। विंड रोज आपने देखा होगा, आई होप एनी ऑफ यू हैव सीन दिस रूटिंग चार्ट्स ऑन द शिप। यस सर। या ओके, यस सर। या सो रूटिंग चार्ट्स पे आपको ये विंड रोज दिया होता है। व्हाट इज विंड रोज? विंड एंड करंट आर वेक्टर क्वांटिटीज, दे बोथ possess two properties, magnitude and direction. So most important vector quantity is the wind. So wind observation usually summarized in the form of wind roses. So routing charts पे these wind roses are shown to you. They basically are observations, maybe काफी सालों की observation के साथ these charts are compiled, and this wind rose gives you a pictorial view of the average occurrence of winds at a particular location. कि यहाँ पे wind direction क्या है, wind speed कितनी है. Now you have seen the wind force and all that. Now these wind roses, they give you same thing, that which direction you will face the wind. So when you are making a passage plan, so you know, routing charts के ऊपर अगर आप अपना कोर्स लगाओगे तो you know कौन सी जगह पे कहीं पे strong winds हैं, so you try to avoid because आपकी speed slow हो जाएगी. So idea of using the shorter distance will be defeated. Is prepared based on at least 15 years of records, very useful for ships officer as they help anticipate weather ahead of the voyage. Now, these diagrams showing for each area percentage frequency of winds from each direction by means of arrows, and the length of each arrow being proportional to the percentage frequency. इसको अगर देखिए, now this is what basically your wind rose is. तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 विंड ट्रायंगल के साथ ही आ जाता है कि डिस्क्राइब द विंड रोज। तो उसमें आप अच्छा स्केच बना सकते हो। Now this is what, ये जो एरो है बेसिकली ये
इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे दिखाई है। अगर ये इस पतली वाली लाइन, दिस इज फोर्स 1 2 3, दिस इज फोर्स 4, ऐसे ट्रिपल 3 लाइनें जो दिख रही, दिस इज फोर्स 5 to 6, फिर ऐसा स्क्वायर, दिस इज फोर्स 7। सो जो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, जैसे इस डायरेक्शन से देखिए, सो आई नो, मैं इस रोज को देखने से आई कैन मेक आउट कि यहाँ पे प्रीडोमिनेंट विंड जो है वो विंड फोर्स 5 to 6 की मेरे को फोर्स मिलेगी, और डायरेक्शन इस डायरेक्शन से, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से मिलेगी। यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी। अब ये जो है आपकी रफ सीज दिखा रहा है 8 to 12। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन से नो, इस डायरेक्शन से नो, बट इस डायरेक्शन से जो विंड है पॉसिबल है, एंड 8 to 12 फोर्स की परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी इतनी है। तो ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आप इसकी लेंथ से मेजर कर सकते हैं, इतनी लेंथ है, सो इट इज कमिंग अप टू से 10%, 0 to 10%, सो दिस इज अबाउट 10 to 12% फ्रीक्वेंसी की चांसेस ऑफ गेटिंग 8 to 12 विंड फोर्स। दिस इज बेसिकली, एंड आपने जो देखा होगा, दीज आर द विंड रोजेस ऑन योर रूटिंग चार्ट्स। तो इसमें जो फर्स्ट फिगर है टॉप पे 4052, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 4000 ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने कंपाइल किया, पीपल हु वेंट देयर, सो सबको अलग अलग विंड्स एक्सपीरियंस हुई, एंड मैक्सिमम पीपल दे एक्सपीरियंस विंड्स। तो ये आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी दिखाती है। आउट ऑफ 4000 ऑब्जर्वेशंस, 0.2 मिडल फिगर इज द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल्स, एंड बॉटम फिगर 0.2 इज द percentage frequency of calms. 0.2% there was calms, no wind, and 0.2% they were variable, कि wind was variable, कोई particular direction से नहीं थी। Otherwise, out of 4000 observations, so I can make out if I am laying my course through this area, so I know I am going to face a strong westerly wind, maximum ये वाली force, then possibility of wind force 8 to 12 भी है, strong winds भी मिल सकती हैं। प्लीज़ इसको पढ़िए, फिगर को स्केच कीजिए। सो विंड रोज अगर आता है तो ऐसा बनाना है, नॉट फ्रॉम द नेट, वहाँ पे वो अलग लैंड वालों की तरह बनाते हैं। सो सी के लिए विंड रोज मीन्स, सो एग्जामिनर कम्स टू नो कि अच्छा भी इस बच्चे ने भी रूटिंग चार्ट देखे हैं, जैसे आपने काम नहीं देखे हैं, सो यू नो विंड रोज ऐसा दिखता है। बाकी परसेंटेज क्या होगा? 0.2% वेरिएबल है, 0.2% काम है, तो हाँ। बाकी सर या रेस्ट ऑफ थिंग इज, बाकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, किसी को विंड इस डायरेक्शन से मिली, किसी को इस डायरेक्शन से मिली, किसी को इस डायरेक्शन से, किसी को इस डायरेक्शन से। हम क्या देखेंगे कि हो सकता है अभी आउट ऑफ 4000 से एग्जांपल 3000 ऑब्जर्वेशन में से हो सकता है 10 बंदों को यहाँ से विंड मिली हो, एंड 100 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो विंड यहाँ से मिली हो, इजंट इट? सो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखा रही है। दिस इज, जितनी लेंथ है इसकी, दैट मीन्स मैक्सिमम जो बंदों को मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में विंड वेस्टर्ली डायरेक्शन से मिली, उससे थोड़ी सी कम एग्जांपल को ये मिली, हो सकता है 800 बंदों को विंड इस डायरेक्शन से मिली, नॉर्थ वेस्टर्ली से मिली, तो चांसेस आर देयर दैट आई कैन गेट विंड फ्रॉम, तो मैं देखूंगा तो मेरे को इस डायरेक्शन से, किसी भी आउट ऑफ दिस डायरेक्शन कहीं से भी विंड आई कैन फेस, एंड इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग विंड। प्रीडोमिनेंटली इट कैन बी वेस्टर्ली, बट किसी से भी हो सकती है, नॉर्थ वेस्टर्ली, साउथ वेस्टर्ली, इन तीनों जगह से। दैट मीन्स अगर मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो मेरे को आगे से विंड मिलने वाली है, आई नो माई स्पीड विल बी स्लो। सो कैप्टन साहब जो हैं वो एस्टिमेट कर लेंगे कि यार ETA जो है थोड़ा आगे पीछे होने वाला है। चलो, ये तो था आपका विंड रोज का आ गया। अब आपका आता है नाउ एपरेंट विंड एंड ट्रू विंड। व्हाट इज एपरेंट विंड एंड व्हाट इज ट्रू विंड, वो कैसे निकालना है? तो ये क्वेश्चन आपका सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल की तरह होता है। नाउ आई विल गो ऑन द बोर्ड टू एक्सप्लेन यू हाउ टू कैलकुलेट बेसिकली ट्रू विंड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आपके पास अदरवाइज एनीमोमीटर लगा हुआ है, सो एनीमोमीटर से आप क्या करते हो, यू कैन फाइंड आउट एनीमोमीटर क्या दिखाता है आप, अपैरेंट विंड। apparent wind। So what is apparent wind? Example, what is apparent wind, what is true wind? Suppose this is सर वो दूसरा वेबकैम ऑन कर दो सर, इसमें ब्लर दिख रहा है। नहीं दिख रहा है इसमें, सर दिख नहीं रहा है साहब। अब दिख रहा है? ये बेटर है। Suppose आपका this is your ship, ship is stationary, you are facing a wind, यहाँ से wind आ रही है से 10 knots की स्पीड से, तो अपने शिप पे आपको what wind will you face? आपका शिप स्टेशनरी है, 10 knots की wind blow कर रही है from north, course you will face what speed you will face on the ship? 10 knots. Same is true. Yeah, you will face a wind force of wind of 10 knot speed. अब दूसरे केस में है, अब आपका शिप जो है that is also moving with 10 knot speed, 10 knot से ही आगे जा रहा है, और आपकी जो विंड है वो भी आगे से आ रही है 10 knot की। Now what wind force you will face on the bridge? What wind? Isn't it 20 knots? 20 knots। 10 से तो आप आगे जा रहे हो, 10 से ही आपको विंड आ रही है, सो
you can make out कि yes I will face 20 knots wind. अब आपके पास आगे की बजाय you are stationary, not moving, and you got a wind from behind 10 knots speed you will face on the ship. 10 knots. 10 knots. सिंपल, आपका जहाज स्टेशनरी है, आप 10 नॉट की विंड फेस करोगे. सपोज आपकी फनल है तो उसमें से जो इंजन का स्मोक आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? करेक्ट, पीछे से विंड आ रही है तो स्मोक जो है सीधा आगे को जाएगा. अब मैं कहता हूँ कि आपका शिप जो है शी इज गोइंग अहेड 10 नॉट्स एंड 10 नॉट्स की विंड जो है इस डायरेक्शन में आ रही है फ्रॉम साउथ, ये भी 10 नॉट से आ रही है. नाउ व्हाट विंड फोर्स यू विल फेस ऑन योर ब्रिज? कौन सी, हाउ मच विंड स्पीड यू विल फेस? 0 knots. यस, 0. तो देखिए अभी आपने किया क्या, बेसिकली मेंटली व्हाट यू आर डूइंग अ रेजोल्यूशन ऑफ योर सर एक बार ये बता दीजिए सर, एक बार सर ये रिपीट कर दीजिए. अभी देखिए योर शिप इज मूविंग अहेड विद 10 नॉट्स, द विंड फ्रॉम बिहाइंड 10 नॉट्स की स्पीड से विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम बिहाइंड. आपका जहाज भी 10 नॉट से जा रहा है, पीछे से भी विंड 10 नॉट से आ रही है, तो बेसिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगी. सो ऑन द ब्रिज विंड जो है वो 0 नॉट की दिखेगी, एब्सोल्युटली काम, कुछ नहीं दिखेगा, विंड है ही नहीं. एक्चुअली रियलिटी में क्या है, द विंड इज फ्रॉम बिहाइंड एंड यू आर आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. अब हमारे पास आ जाता है इसी चीज को देखते हुए, यार इफ आई एम स्टेयरिंग अ पर्टिकुलर कोर्स इज आल्सो मूविंग विद 10 नॉट्स एंड देयर इज अ wind from one particular direction, say southeasterly wind I am facing. Two direction of the wind is southeasterly, but my ship is moving in this direction. On the ship आपको wind कौन सी डायरेक्शन से आती दिखेगी और कितनी स्पीड से आती दिखेगी? This is what basically is your wind triangle. Second, ये तो थी ट्रू विंड. अब आप शिप पे हो, यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आपके आगे यहाँ पे एनीमोमीटर लगाया हुआ है. एनीमोमीटर इज टेलिंग यू जो आपको शिप पे सर अभी भी ब्लर है सर. आप क्या आपके देखो नेट में, तो आपके नेट में प्रॉब्लम होगी लगती है, उसको ऑन ऑफ करके देखो. सर मेरे में भी ब्लर है सर. सर मेरे में भी ब्लर है. सर ब्लर आ रहा. सर एक बार सर आप लीव करके दोबारा लगा के देखिए तब शायद सही हो जाए. चलो मैं लीव करके देखता हूँ. लेट मी सी, बट माय नेट इज शोइंग फुल. जस्ट स्विच ऑफ द कैमरा एंड देन सी, फर्क पड़ता है. तो ऑफ करके ऑन करें. अब देखिए ओके, अब आपकी जो विंड है, जो आपका एनीमोमीटर है, वो आपको वो विंड डायरेक्शन दिखाएगा जो कि रिजल्टेंट है ट्रू विंड का और आपके शिप के कोर्स का. सो अब हमारे पास एग्जांपल आ जाता है, जैसे मैंने दिखाया कि ओके नाउ टेक आउट योर व्हाट यू कॉल दिस योर. अब इस चीज को करने के लिए एग्जांपल, योर कोर्स इज, द शिप्स कोर्स इज 045, ट्रू इज मूविंग विद एट 15 नॉट्स. अपरेंट विंड जो आपका एनीमोमीटर आपको दिखा रहा है, अपरेंट विंड दिख रहा है बच्चे, भी क्लियर है कि नहीं, फर्क पड़ा? सर ब्लर है सर. यस सर ब्लर है सर. ब्लर है अभी भी. ब्लर है सर. प्रॉब्लम यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, आई डोंट नो. चल आई जस्ट लीव एंड ज्वाइन अगेन. आप जो पढ़ा रहे थे तो बेटर था सर. या स्लाइड्स पे फर्क रहता है, यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा. आई कैन सी इन माय इमेज इट इज नॉट शोइंग. ब्लरिंग या तो हिलने से भी हो सकती है. ओके आई जस्ट मेक इट स्लाइटली क्लोजर. 1 मिनट. हाँ अब देखिए, हाउ इज इट नाउ? ब्लर है सर. सर मैं भी कैमरे की वजह से ब्लर आ रहा हूँ. ओके देन फॉरगेट, वी गो बैक ऑन द स्लाइड्स ओनली. इसको छोड़ देते हैं. ओके स्लाइड्स तो क्लियर दिख रही है आपको? यस सर. या ओके, सो दिस इज योर कोर्स 45, स्पीड 15 knots, apparent wind is 100 degree at 20 knots. Find the direction and speed of true wind. इस क्वेश्चन को जब हमने करना है, हाउ वी आर गोइंग टू डू. आपका कोर्स दिया है 045 एंड स्पीड, सो वी हैव टू सेलेक्ट अ स्केल फर्स्ट. एग्जांपल 1 knot is equal to 1 centimeter. Wind speed आपकी है अगेन, apparent wind is 20 knots. So मैंने स्केल सेलेक्ट कर लिया. बाकी तो ठीक है, कोर्स आई कैन मार्क 045, 100. आई कैन टेक दैट प्रोटेक्टर एंड आई कैन मार्क द कोर्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. उसको कितने सेंटीमीटर काटना है, दैट इज एज पर योर स्केल. सो यू कैन टेक 2 centimeter इज इक्वल टू 1 knot और 1 centimeter इज इक्वल टू 1 knot. अपरेंट विंड आपको 100 डिग्री, दैट इज योर से एनीमोमीटर या किसी से भी आपको मिल रही है, दैट इज अपरेंट विंड. बट आई वांट टू नो व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड स्पीड. कोर्स इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सो बेसिकली वी ड्रॉ कोर्स 80. हाउ डू वी ड्रॉ द कोर्स? अपनी शीट निकालिए, आंसर शीट्स निकालिए, नोटबुक्स निकालिए, उसके ऊपर जस्ट टेक आउट दैट प्रोट्रैक्टर एंड ड्रॉ दिस 045. इस 045 ड्रॉ करने के लिए बेसिकली व्हाट यू कैन डू,
जस्ट ड्रॉ वर्टिकल लाइन एंड उसके ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए। नाउ आप इस वर्टिकल लाइन पे अपना अगर प्रोटेक्टर रखते हो, डी रखते हो इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वहां से आप 045 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द वर्टिकल। सो फ्रॉम हियर दिस इज 0 0 एंड यहाँ से 45 ड्रॉ दिस लाइन, जरा करके देखिए 045 डायरेक्शन में। एक बार फिर से समझा दें। या ये मेरे को एक्चुअली आपको आसान था, मैं दोबारा से लेट मी सी अगर बात बनती है। यानी क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, एक्सप्लेन यू बोर्ड पे एक बार समझ हो जाता तो अच्छा था। आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग ब्लर्ड। क्वेश्चन लिख लीजिए, देन आई विल गो ऑन द बोर्ड एंड सी थोड़ा बहुत जो भी, इफ यू कैन सी इट विल गिव यू अ बेटर आइडिया इस इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। 45 045 15 नॉट्स 100 बाय 20 नॉट्स ऑफ द ट्रू विंड डायरेक्शन। सो आपको ये ट्रू विंड डायरेक्शन निकालनी है। ओके सर। Yeah, let's see if we can. Basically what we do, I have to draw say 045 का course. Now on your sheet just draw a vertical line. इस पे मैं एक point ले लेता हूँ। I hope little bit can you see? थोड़ा तो दिख रहा होगा। यस सर, दिख रहा है। या अब आप अपने जो प्रोटेक्टर है, आपकी जो D है, आप उसको रखिए लाइक दिस। जो आपने पॉइंट मार्क किया था उसके साथ आप उसको मैच कर दीजिए एंड यू कैन ड्रॉ 045 यहाँ पे। एंड नाउ आई ड्रॉ दिस लाइन 04। मेरे को एंगल पता लग गया। ऑफ कोर्स आप अपनी शीट पे वेरी नाइसली यू कैन ड्रॉ एंगल इज 045। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ A, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ, अभी इस पॉइंट को नहीं, अभी हमने ये AT लाइन ड्रॉ की है। नाउ दिस इज 045 एंड मेरा स्केल क्या था, chosen a scale 1 centimeter is equal to 1 knot. The ship is doing 15 knots, तो मैं 15 सेंटीमीटर इसको काट देता हूँ। इसी 15 सेंटीमीटर इसी पे हम देखते हैं कि आपने जो भी स्केल लिया है 15 सेंटीमीटर। बेसिकली चलो थोड़ा सा एनलार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रायंगल छोटी बनेगी। तो ये पॉइंट बन जाता है T 045, ये पॉइंट बन गया। नाउ ही सेज अपरेंट विंड इज कमिंग फ्रॉम 100। आप ऐसा कीजिए, व्हाई डोंट यू पिन ऑन माय नेम, देन यू विल सी क्लियर। मेरे नाम को पिन कीजिए। ऑलरेडी पिन हो सर। सर पिन क्या हुआ है, बट सर एक्चुअली ब्लर आ रहा है सर, हमें जो आप बोर्ड पे लिख रहे हो ना कुछ समझ नहीं आ रहा। पिन करने पे भी नहीं आ रहा। आप इंटरनेट बस का बोर्ड कनेक्टिविटी विजिबल इशू नहीं है सर, बाकी तो ऑडियो तो क्लियर है। ऑडियो क्लियर है सर, बोर्ड ही नहीं दिख सर रहा। वो बैकग्राउंड अपडेट्स बंद कर दीजिए, उसमें मीटर कनेक्शन जाके कर दीजिए वाईफाई पे अपने। कौन सा वाला कनेक्शन? मीटर कनेक्शन का ऑप्शन होगा आपके वाईफाई पे, उस पर कर दीजिए। इनकेस अगर आपके बैकग्राउंड अपडेट्स होंगे तो फिर जल्दी दिखेगा वो कंटिन्यूसली। वो तो बच्चे देखेंगे, टाइम निकल जाएगा। एनीवे वी गॉट वेरी लेस टाइम, सो एनीवे थोड़ा बहुत देख सर लीजिए। पेंट में बता दीजिए तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसमें जैसे लाइनें पेंट वगैरह में सर। हाँ वो देखिए ना, वही मैं दिखा रहा था आपको। एनीवे आपको ये 45 ड्रॉ करना है, whatever little bit you can see. Now my apparent wind is, apparent means A. तो अब मेरे को apparent है तो मैं A पॉइंट लूंगा। ट्रू विंड की डायरेक्शन है, सपोज मेरा ये पॉइंट T था, ये आपने ड्रॉ कर लेना है। apparent wind is given 100, so 100 को अगर मेरे को ड्रॉ करना है, सेम यू कीप द प्रोटेक्टर हियर आपका, एंड यहाँ से आपने की डायरेक्शन ले लेनी। दिस इज 90, दिस इज, तो ये मेरे पास डायरेक्शन आ जाती है। देन आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम लाइक दिस, the apparent wind I am facing. तो अगर आप देखिए उसको, if I share this on the slide, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। अभी सही है। आप बोर्ड दिख रहा ठीक है, स्लाइड दिख रही थी? सर अब तो पीपीटी दिख रही है। ओके, सो पीपीटी पे अगर आप देखिए, so what we have done, we have drawn this line, we marked a point here, then we draw this 045 course, and now the apparent wind is coming from 100. तो मैं क्या करता हूँ, apparent wind है तो ये you draw from the direction 100. आपने ये एंगल बनाना है अगेन with the vertical 100 and you get this line. अब आपको apparent wind की स्पीड दी हुई है 20 नॉट्स, तो मैं ए अपनी कंपास रखता हूँ 20 सेंटीमीटर, इसको काट देता हूँ यहाँ। सो दिस बिकम्स ओ, ए ओ बन गया। इसको बेसिकली हम ए ओ नहीं कहेंगे, हम इसे ओ ए कहेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ apparent wind. नाउ आपके पास ए टी था, टी पॉइंट भी था। नाउ आई ज्वाइन दिस ओ टी. ओ टी इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रू विंड। तो ये मैं मेजर कर सकता हूँ। कैसे इसको मेजर करूँगा? टी पे अगेन ड्रॉ द वर्टिकल लाइन एंड कीप योर प्रोटेक्टर एंड देन मेजर दिस एंगल। ये एंगल कितना आता है? तो ये आपको एक्चुअली एक्सरसाइज बुक पे प्रैक्टिस करना है एंड देन यू सी
कि इसका जो आंसर है बेसिकली इट इज कमिंग 147 डिग्री। सो नाउ दिस एंगल इज कमिंग 147 एंड इस लाइन की OT लाइन की मैं लेंथ जो है कंपास से मेजर कर लेता हूँ और स्केल से हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, मेरा स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल, तो आपको 17 सेंटीमीटर मिलता है, दैट मीन्स 17 नॉट्स। सो ट्रू विंड इज कमिंग फ्रॉम, ऑलवेज रिमेंबर OT, it is coming from this direction 147 and 17 knots. This is the very easy way that you draw this. Apparent wind की direction speed पता है, I draw this apparent wind course and speed and then I draw what you call, इन दोनों points को join करता हूँ, so this becomes the direction and speed of true wind, which will be OT. so आपने ये arrow साथ लगाते जाना है, when you draw the line you put this arrow, this is AT is the speed and my course 15 नॉट्स, ये 80 पॉइंट आ गया। अगर मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें मेरे को ट्रू विंड डायरेक्शन दी है एंड आई हैव टू कैलकुलेट द एपरेंट विंड की डायरेक्शन। आई होप इसमें थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं, कि हाउ टू ड्रॉ दिस कोर्सेज ऑन योर, सी चार्ट पे तो इजी है ना, प्लेन पेपर पे विद प्रोटेक्टर हाउ विल यू ड्रॉ? बेस्ट वे इज दैट यू ड्रॉ हमारा नॉर्थ साउथ लाइन, वर्टिकल लाइन, उस पर एक पॉइंट ले लिया तो 045 ड्रॉ करना वेरी इजी। सेकेंड, अब मैंने ये ट्रायंगल तो पूरी कर ली है, नाउ आई वांट टू मेजर दिस एंगल, हाउ डू वी डू? वर्टिकल लाइन एंड देन यहाँ से मैं इसको प्रोटेक्टर से मेजर करता हूँ हाउ मेनी डिग्रीज इट इज। क्लियर? क्या कहते हैं, क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, सो ये तो रहा, या वेरी गुड। सो इसको प्रैक्टिस कीजिए, चलो इसको भी आपने किया है, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। कोर्स 200, स्पीड 14 नॉट्स, विंड डायरेक्शन 300, 18 नॉट्स, फाइंड द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एपरेंट विंड। ठीक है, चाहे इसको इतनी एक्यूरेसी नहीं है बट एक्यूरेसी तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी डायरेक्शन जो है वो गलत आ जाएगी। सो कोर्स ड्रॉ कीजिए, 200 का कोर्स किस तरफ से होगा? ये ना वर्टिकल लाइन, ड्रॉ वर्टिकल लाइन, उस पर एक पॉइंट ले लीजिए एंड देन यहाँ से यहाँ तक तो 180, इजंट इट? नॉर्थ साउथ इज 180, मेरे को 180 से 20 डिग्री और करना है। सो यू पुट योर प्रोटेक्टर और D जिसे कहते हो, आप उसको रखिए यहाँ से 20 डिग्री। सो दिस वे यू कैन ड्रॉ योर कोर्स लाइन 200। ओके, देखिए ड्रॉ दिस 200 वर्टिकल लाइन, उस पर एक पॉइंट ले लीजिए वर्टिकल लाइन के सेंटर में कहीं पे की लाइन ड्रॉ होगी। अब आपको क्वेश्चन ने दिया डायरेक्शन ऑफ द ट्रू विंड 300 बाई 18 नॉट्स, तो मैं क्या करता हूँ, AT आपने ड्रॉ किया है तो ट्रू विंड दिया है, सो आई कम टू पॉइंट T। पेरेंट दिया होता देन आई कम टू पॉइंट A, लास्ट क्वेश्चन में था। नाउ आई कम टू पॉइंट T, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और दिस इज बेसिकली नॉर्थ साउथ 00। अब मेरे को है द ट्रू विंड इज कमिंग फ्रॉम 300, विंड इज ऑलवेज द डायरेक्शन इट इज कमिंग फ्रॉम। सो अब मेरे को 300 की लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ आई नो दिस इज 180, यहाँ से लेके दिस इज 180, अगर 90 और जाते हो 270 एंड इसके बाद ये 30 डिग्रीज आपने ऊपर ड्रॉ करना है। सो सी हाउ यू कैन ड्रॉ दिस 300 का लाइन एंड स्पीड ऑफ द ट्रू विंड इज ऑल्सो गिवन 18 नॉट्स। ड्रॉ दिस 300 लाइन, कट इट 18 सेंटीमीटर जो आपका स्केल था। पहले मैंने ये 14 सेंटीमीटर काटा था, अब आप इसको 18 सेंटीमीटर काटिए। कई बार हो सकता है स्पीड ज़्यादा है, आप स्केल को आधा भी कर सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, बट देन यू गोट टू बी केयरफुल। जब आप तीसरी ट्रायंगल और तीसरी लेंथ को मेजर करोगे वहाँ पे भी आपने वही स्केल यूज़ करना है। आफ्टर कटिंग दिस 18 नॉट्स यू आप O आपके पास आ गया, OT। सो यू ड्रॉ द एरो that this is the true wind direction, in this direction true wind is coming from OT। आपका O point भी था, OA मिला दीजिए, OA give you the direction of apparent wind। so you are moving in this direction, true wind is from this direction and you will face actual wind from your starboard bow। इस डायरेक्शन से आपको विंड दिखेगी, नॉट फ्रॉम starboard, इस तरफ से नहीं, थोड़ी सी इधर से, बिकॉज योर शिप इज ऑल्सो मूविंग। तो ये डायरेक्शन होगी आपकी apparent wind की, which is basically if you see the answer is apparent wind 3.8 knots की। and direction, अब मेरे को ये डायरेक्शन निकालनी है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, इस तरफ से भी निकाल सकते हो, बट ये विंड जो इस तरफ से आ रही है, सो डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ कैलकुलेटिंग ये वाली नॉर्थ ईस्ट साइड नहीं कैलकुलेट करनी है आपको। तो ये जो विंड है आपकी बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन 50। देखिए ड्रॉ करके देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं, एक बार ट्राई करूँ। हाउ इज द कैमरा, कैसा दिखता है आपको? देखिए कुछ फर्क पड़ता है, बोर्ड में दिखता है कुछ? स्टिल सेम।
सर सेम ही है। Same है. I have to do some. Anyway, this camera is very powerful, but okay, ये तो सेम दिखेगा, मैंने लगाया ही नहीं. Okay. सर एक्चुअली ये वाला जो कैमरा आपने यूज किया ना, इसमें जूम हो जाता है बट तब भी थोड़ा ब्लर दिखता है सर। इसमें मतलब पास आ जाता है आपका बोर्ड बट ब्लरी है अभी भी। अभी ब्लर है. I write something you cannot read, is it? Like if I draw a line, blur है. सर लाइन तो पता चल जाता है सर, बट आप कुछ लिखोगे ना, जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ा जाता ना। ओके, इसका भी इलाज करता हूँ मैं. मे बी यू आर सेइंग द डिस्टेंस, अगर मैं दूर करूँ तब हो सकता है ठीक. नहीं सर, डिस्टेंस की बात नहीं है सर, वो स्क्रीन ही ब्लर है सर एक तरह से। मतलब आप लाइन भी लगाई हुई है ना आपने, वो भी ब्लरी है बट पता चल जाता है कि लाइन है ना सर, बट रिटर्न तो वैसे नहीं समझ आता। कि ये नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जा रहा. टाइम राइटिंग यू कैन नॉट रीड, इज इट? ठीक है, कोई नहीं, करते इसका भी इलाज. चलो एनीवे, सो आपका लंच टाइम हो गया, तो आई विल करेक्ट इट. सो वी विल कंटिन्यू विद, हमारा कल भी लेक्चर है मॉर्निंग में. सो आई थिंक आई विल बी एबल टू डू समथिंग सो दैट वंस आई शो यू ऑन द बोर्ड हाउ दिस विन ट्रायंगल इज टू बी सॉल्व्ड. इट्स वेरी सिंपल, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है. तो यू फेस द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग दिस एंगल, ड्राइंग दिस एंगल ऑन योर आंसर शीट. चार्ट पे तो इजी है, यू गॉट अ कंपास रोज देयर, इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ. बट यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है. दैट विल सॉर्ट आउट वंस आई शो यू ऑन द बोर्ड हाउ टू draw these angles at A, at T, and how to measure them, what angle you have drawn. Okay? Thank you sir. Yeah, chalo. Okay dear, bye bye. Thank you sir. Yeah, welcome. Thank you sir. Camera की conditions क्या है?